اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی نرسری میں آتش زدگی سے جاں بحق ہونے والے 14 بچوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ، سعودی عرب اور ایران نے سانحہ پیمز اسپتال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ جاں بحق بچوں کے والدین سے گہری ہمدردی ہے۔ اقوام متحدہ پاکستانی حکومت کی ہر ممکن معاونت کے لیے تیار ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صحت کے ارکان نے ڈاکٹر مہیش کمار کی قیادت میں پیمز اسپتال کا دورہ کیا اور جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ قائمہ کمیٹی کے ارکان نے انتظامیہ پر شدید تنقید کی اور آتش زدگی کی وجوہات پر سوال اٹھا دیے۔ مہیش کمار نے کہا کہ وزیر صحت نے بیان دیا ہے کہ پرانے اے سی سے اسپارک ہوا، کوئی کہہ رہا ہے کہ آکسیجن سلنڈر پھٹا، کسی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ آگ کیسے لگی ہے۔ کہا گیا کہ وارڈ میں موجود اے سی کافی عرصے سے کام نہیں کر رہا تھا۔ ہم تجربہ کار ڈاکٹر پر مشتمل کمیٹی بنا رہے ہیں جو واقعے کی تحقیقات کرے گی۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے پیمز اسپتال میں 14 نومولود بچوں کی ہلاکت پر ایوان میں تحریک التوا جمع کروا دی۔ کہتی ہے المناک واقعے کی فوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ دارالحکومت کے مرکزی سرکاری اسپتال میں حفاظتی انتظامات کا غیر فعال ہونا ناقابل قبول ہے۔ پیمز سانحہ پر ایوان میں معمول کی کارروائی فوری طور پر معطل کرنے کی تفصیلی بحث کی جائے۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو نے پیمز اسپتال نرسری وارڈ میں پیش آنے والے انتہائی افسوسناک اور سنگین آتش زدگی کے واقعے پر قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرا دیا ہے۔ ڈاکٹر مہرین بھٹو نے کہا کہ پیمز میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی سنجیدہ اور تشویشناک معاملہ ہے، جس کے نتیجے میں معصوم نومولود بچوں کی قیمتی جانیں ضیاع ہوئیں۔ واقعے کے اسپتالوں میں حفاظتی انتظامات، انتظامی غفلت اور ایمرجنسی رسپانس سے متعلق کئی اہم سوالات کو جنم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سانحہ پیمز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست دائر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج یا سیشن جج ویسٹ پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی استدعا۔ تحقیقات کے لیے فورنسک اور پیمز کے فائر الارم سسٹم کا مکمل آڈٹ کرانے کا حکم کیا گیا۔ ڈائریکٹریٹ جنرل مذہبی تعلیم کے زیر اہتمام دینی بورڈز اور جامعات کے قائدین کی مشاورتی کانفرنس۔ بینکوں کو واضح، یکساں اور قابل عمل تقاضوں کے تحت مدارس کی درخواستوں پر کارروائی کی ہدایت۔ بینک اکاؤنٹس کھولنے کا عمل مدارس پر غیر ضروری بوجھ اور پیچیدگیوں سے پاک رکھنے پر زور۔ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد میں دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولنے پر فوری عمل درآمد کا فیصلہ۔ دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولنے میں قانونی اور انتظامی رکاوٹیں مرحلہ وار دور کرنے پر اتفاق۔ اکاؤنٹ سے مدارس کو معاملات کے لیے محفوظ اور دستاویزی بینکاری سہولت میسر آئے گی۔ حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھلنا خوش آئند اقدام ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم علی کے معاملے میں ذاتی دلچسپی پر مشکور ہیں۔ مدارس کا نظام ہر لحاظ سے شفاف ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا کے علاقے جنوبی وزیرستان اور بلوچستان کے ضلع خوزدار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشنز کے دوران 11 دہشت گرد جہنم واصل، بنو میں 2 دہشت گرد جہنم واصل اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ، لدھا میں 5 خوارج، خوزدار میں 4 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ بلوچستان حکومت نے فتنہ ہندوستان سے وابستہ انتہائی مطلوب 9 دہشت گرد خواتین کے سر کی قیمتیں مقرر کر دیں۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے مطلوب خواتین سے متعلق معلومات فراہم کرنے پر 10 سے 15 لاکھ انعام کا اعلان۔ مطلوب خواتین کی نشاندہی میں مدد دینے یا اطلاع دینے والوں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ ان سے متعلق اطلاع حکومت بلوچستان کے مقررہ رابطہ نمبرز پر دی جا سکتی ہیں۔ خواتین کا تعلق گوادر، جیونی اور تربت سے ہے۔ مطلوبہ خواتین میں حنفیہ بی بی، جبکہ عائشہ، رقیہ، حفصہ، زہرا، امینہ بانی، زمین اور عزیزہ شامل ہیں۔ مطلوب 8 خواتین کے سر کی قیمتیں 10-10 لاکھ جبکہ عزیزہ کے سر کی قیمت 15 لاکھ مقرر کی گئی۔ یہ خواتین بلوچستان میں امن دشمن کارروائیوں میں ملوث اور سادہ لوگ خواتین کو ورغلا کر بدامنی پھیلانے کے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी सफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान और मुमलिकत सऊदी अरब के दरमियान गहरे ब्रादराना और तस्वीराती ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए उनकी नुमायां खिदमात को सराहा। इंसानी स्मगलिंग और हवालाबंदी माफिया की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA जोनल ऑफिस लाहौर का दौरा। खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए इंसानी स्मगलिंग और हवालाबंदी में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। कहा कि जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन आपका काम है और इस ज़मन में नताइज नजर आने चाहिए। अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान समझता है कि मौजूदा इलाकाई चैलेंजेस का पायदार हल बातचीत और सफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है और इस मकसद के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के सिलसिले में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 24 अगस्त को ईरान का दौरा किया। ईरानी क़यादत से कशीदगी के खात्मे के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा ने 14 अगस्त को तेहरान का दौरा किया। मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल तलाश करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर बातचीत के लिए तैयार है। कतर के वज़ीर आज़म आज तेहरान पहुंचेंगे। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी हुकाम से कशीदगी में कमी और मज़ाक़ात के लिए साज़गार माहौल पैदा करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए इजरायली कब्जे का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि फ़लस्तीन में इजरायली गैर कानूनी आबादकारी बदस्तूर जारी है। जंग बंदी के बाद 1200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। जंग बंदी बरकरार है तो हमले कैसे जारी हैं? गैर कानूनी आबादकारी आबादकारों का तशद्दुद और जबरी बेदखली ख़त्म करना ज़रूरी है। सलामती कौंसिल के तमाम अरकान महफूजा इलाकों के इल्हाक को मुस्तरद करते हैं। जंगी जराइम और दीगर संगीन जराइम के लिए जवाबदेही यकीनी बनाई जाए। पायदार अमन के लिए इजरायली कब्जे का खात्मा नागुज़ीर है। फ़लस्तीनी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती गैर मुतज़लज़ल है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुदराबियत की जायज़ जद्दोजहद में साथ खड़े हैं। प्रिंस अस्पताल के वाक़े ने पूरी कौम को गम में मुब्तला कर दिया है। अफसरान की मौतलियाँ मुस्लिम लीग नून की ड्रामेबाजियाँ हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इस्लामाबाद में इंतहाई नाकिस गवर्नेंस है। सरकारी अस्पताल से बच्चा चोरी होना डूब मरने का मुकाम है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM नाअहल और करप्ट है। इस्तेमाल शुदा सिरिंज लगाने से कराची बच्चों में एड्स फैल रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ करप्शन करती है, आवाम को कुछ नहीं देती। हमारी पुरअमन सियासी मुसामत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सेंकांग में चीन के मारूफ टायरन वेस्टर्न डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर आमद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कंपनी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में लाइव स्टॉक में बेहतरी और फ़रोग़ के प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। देही ख़वातीन की माली खुद मुख्तारी और मवेशियों की अफजाइश नस्ल की स्पेशल प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की सूबे भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इक़दाम पर अमल दरामद की हिदायत। मरासला जारी। मरासले में कहा गया कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी कवानीन, कवायद और ज़वाबित और PHC के मेयार पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। अस्पतालों में एमरजेंसी कोडिंग सिस्टम बिलखुसूस कोड रीड नाफिज किया जाए। फायर से फाइटिंग आलात, एमरजेंसी रास्तों को नक्शों और इमारतों को फिटनेस सर्टिफिकेट्स की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। अस्पताल इंतजामिया को तरबियत याफ्ता अमला और बाकायदा फायर सेफ्टी ड्रिल्स यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। सूबा पंजाब के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के गिर्द फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब के अहकाम जारी। वज़ीर आला की हिदायत पर बड़े सरकारी अस्पतालों में आग से बचाव की पेशगी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पहले मरहले में सूबे भर के 57 सरकारी अस्पतालों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। ज़रूरत के मुताबिक अस्पतालों के गिर्द फायर हाइड्रेंट्स नस्ब किए गए।
मानसहरा की घरेलू खातून का सुपारी देकर अपने होने वाले दामाद को कराची में कत्ल करवाने का इंकशाफ। सोहराब कोट पुलिस ने 44 दिन के बाद खातून समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 14 जुलाई को सोहराब कोट बस टर्मिनल के करीब से ड्रम से गला कटी लाश मिली थी। 2 लाख की सुपारी मुलजिम अनवर खान ने ली थी। मकतूल का साला नूर भी कत्ल में मुलव्विस था। सीसीटीवी से पता चला कि एक सुजुकी में ड्रम को लाया गया था। सुजुकी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया था। मकतूल शादीशुदा था और दूसरी शादी करना चाहता था। लड़की की मां और भाई शादी के खिलाफ थे। कराची के इलाके न्यू कराची 5.5 नंबर के करीब फायरिंग 26 साल नौजवान जबाहक मकतूल की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल पेशे से सब्जी फरोश था। लोडिंग सुजुकी से पर सब्जी मंडी जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने लूटमार की। मुलजिमान ने मकतूल को मज़ाहमत पर गोली मार दी। जाए वक़्वा से सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है। वाक़ई डकैती मज़ाहमत है या कुछ और तहकीकात की जा रही है। साइड सुपर हाईवे पुलिस का फकीरा गोट में स्ट्रीट क्रिमिनल से फायरिंग का तबादला। एक जख्मी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा, छीने गए मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। थाना कोराल की हदूद गौरी टाउन में शहरियों को हिरासा करके भत्ता वसूल करने वाले मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी चार्जेस के नाम पर शहरियों और प्लॉट मालिकान से भत्ता वसूल करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ में जदीद सहूलियात का क़याम अहम पेशरफ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ में नई सहूलियात की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि नई सहूलियात से जानवरों की सेहत, तहकीक और बीमारियों की निगरानी का निज़ाम मज़ीद मजबूत होगा। लाइव स्टॉक सिंध की मईशत का अहम सतून और लाखों खानदानों के रोजगार का जरिया है। लाइव स्टॉक का शोबा ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, रोजगार और देही खुशहाली में अहम किरदार अदा करता है। सेहतमंद मवेशी, बेहतर पैदावार और किसानों की आमदन में इजाफा हमारी बुनियादी तरजीहात हैं। सरकारी मुलाजमीन की तरक्की के हवाले से सिंध में उल्टी गंगा बहने लगी। अमूमन सरकारी मुलाजमीन तरक्की के मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन सिंध में मामला बिल्कुल उलट हो गया। 63 सब रजिस्ट्रार ने एक साथ अगले ग्रेड में प्रमोशन ठकरा दी। अफसरान ने कहा कि हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, मामला तरक्की का है या दाल में कुछ काला है। अफसरान के फैसले ने कई सवालात को जान दे दिया। और चैनल 5 न्यूज़ ग्रुप के चेयरमैन खालिद दराइन के दिल का कामयाब ऑपरेशन। माहिर सर्जन्स की टीम ने डॉक्टर बशीर हनीफ की सरबराही में 2 स्टंट डाले। डॉक्टर्स के मुताबिक खालिद दराइन की हालत बेहतर है और वो तेजी से रोबे सेहत हो रहे हैं। चेयरमैन खालिद दराइन के अहल खाना और चैनल 5 न्यूज़ ग्रुप की इंतजामिया ने इनसे मोहब्बत करने वाले तमाम अफराद से जल्द और मुकम्मल सेहत याबी के लिए खुसूसी दुआओं की अपील कर दी।